Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lecture number 8. I am Danish Shehzad, subject mathematics, and we are in progress of phase. In this lecture, we will discuss about quotient law, and in which we have two cases, case 1 and case 2. In case 1, we have when bases are same but exponents are different. In case 1, we will study quotient law when the bases of the exponents are same but the exponents are different. And in second case, we will discuss about quotient law when bases are different, exponents are same. And further, we will discuss some related questions and solve them. First of all, we have case 1 of quotient law. In case 1, when bases are same but exponents are different, कि जब हमारे पास bases same हो और exponents हो, तो उस वक्त हमारे पास जो quotient law है वो क्या होता है. तो देखें हमारे पास the division of two rational numbers with the same base can be performed by subtracting their exponents. कि जब हम टू रेशनल नंबर्स जिनकी बेसिस सेम होती हैं उन पे डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सपोज a इज द बेस ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स. अब देखें हमारे पास बेसिस सेम है, तो सपोज दैट a इज द बेस ऑफ any two rational numbers with exponents m and n such that, जिसमें के exponents m और n है, such that a is not equal to 0, और जो हमारे पास rational number है a वो not equal to, and m is greater than n, और जो हमारे पास exponents हैं उनमें m जो है वो greater than n है. Then according to quotient law हमारे पास क्या है, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power n minus m minus n. You will observe that we have two rational having the same basis a but the different exponents have m and n respectively. And when we perform division on these two rational numbers, the result will be the same base, but exponent is m minus n. There are two conditions of this case. Condition 1 is that the base is same, and the condition 2 is that a is not equal to 0, means that the rational number is must be non-zero, and the third condition is that m is greater than n. अगर तीन ये conditions होंगी, उसके बाद जो हमारे पास division law है वो क्या होगा, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. केस 1 की हमारे पास एग्जांपल है, जो कि केस 1 है हमारे पास व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट. एग्जांपल है, देखिए हमारे पास टू रेशनल नंबर्स हैं. एक है -2/3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -2/3 2. अब देखें यहाँ पे जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं वो सेम हैं. ये भी -2/3 है और ये भी हमारे पास -2/3 है, but the exponent of this rational number is 5 and the exponent of this rational number is 2. So the bases are same but exponents are different. यहाँ पे bases same लेकिन exponents हमारे पास different हैं. तो हमारे पास क्या situation है, हमारे पास बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास नॉन जीरो रेशनल नंबर है, एंड थर्ड वन जो m है हमारे पास, जो फर्स्ट रेशनल नंबर की का एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर है सेकंड नंबर के एक्सपोनेंट से. सो वी विल राइट -2 की पावर 3 to the power 5 minus 2. 5 minus 2, exponent of the first rational number minus exponent of the second rational number, and this is our answer, -2/3 to the power 3. In this, using this quotient law, we will solve the division problem of rational numbers having the base and exponents. Now we have case 2 in which bases are different but exponents are same. We are going to toward the equation for any two rational numbers a and b, where b is not equal to 0 and n is their exponent. Then देखें यहाँ पे
जो पहले हमारे पास केस था जिसमें बेसिस सेम थी, वहां पे हमारे पास बेस एक थी जबकि एक्सपोनेंट्स दो डिफरेंट थे। बट यहाँ पर क्या है, बेसिस टू डिफरेंट बेसिस हैं, ए एंड बी हमारे पास दो डिफरेंट बेसिस हैं, वेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड n इज दी देयर एक्सपोनेंट। और यहाँ पे देखिए n दोनों का एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, कॉमन। तो देखिए क्या होगा, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n इज इक्वल टू a बाय b टू द पावर n। तो यहाँ पे देखें a की पावर n थी और b टू द पावर n थी, तो फिर इन दोनों की पावर हमने कॉमन ले ली। ये हमारे पास क्वोशिएंट लॉ है, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर। इसकी हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 1 है, देखें 9 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 8। तो देखें यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, एक की बेस 9 है, दूसरे की बेस 3 है, बट यहाँ पे देखें इसकी इसकी एक्सपोनेंट 8 है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 8 है, मींस कि दोनों के एक्सपोनेंट सेम है बट बेसिस डिफरेंट है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 9 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 9 divided by 3 to the power 8. अब 9 divided by 3 ones are 3, 3 3s are 9, 3 to the power 8. This is answer. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, जिसमें हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं। अब देखें यहाँ पे बेसिस सेम है बट एक्सपोनेंट्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट हैं। ये केस 1 से सॉल्व होगी। देखें यहाँ पे इसकी बेस 3/7 एंड अगेन यहाँ पे सेकंड रैशनल नंबर में भी बेस 3/7 है। Exponent in the first rational number is 9 and exponent in the second rational number is 2. So we will perform division by subtracting their exponents, smaller exponents from the greater one. तो देखें यहाँ पे जो इस rational number का exponent है ये 9 है और यहाँ पे इस rational number का exponent 2 है and 9 is greater than 2. So we will operation using quotient law. तो ये हमारे पास क्या है, 3/7 to the power 9 minus 2। ये हमारे पास 7 है, 3/7 आंसर है 3/7 to the power 7। Now we will solve some related question of exercise 4.3। हमारे पास है exercise 4.3 का question number 1 in which we have to simplify questions, some equations, and question number 1 का part 1 है 2 to the power 7 divided by 2 to the power 2। अब इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा, सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे और देन हम इस पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट आंसर विल बी सेम। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 and divided by 2 to the power 2। 2 to the power 7 means 7 times 2, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 up to 7 times, and 2 to the power 2 means 2 times 2। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 times 2 ये हमारे पास है। अब देखिए ये जो 2 हैं, 2s यहाँ दोनों 2 से कैंसिल, पीछे हमारे पास बचे 5 2s, तो ये हमारे पास बन गया 32। अब हम यूज करते हैं क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ में हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं। m जो पहली रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर है सेकंड रेशनल नंबर से, और जो रेशनल नंबर है वो हमारे पास नॉन जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली बेस सेम लेकर इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 minus 2, 2 to the power 5, and again you will observe that 2 to the power 5 is equal to 32। now question number 1 part 8 है हमारे पास 1/6 to the power 15 divided by 1/6 to the power 11। यहाँ पे अगेन देखें बेसिस सेम है बट पावर्स और डिफरेंट। we will directly use quotient law in which we will subtract the exponents of these same basis rational numbers। ऐसे हम rational numbers की पावर्स को subtract कर देंगे कि जिनकी बेस सेम है। तो ये हो जाएगा 1/6 to the power 15 minus 11। ये हो जाएगा 1/6 to the power 4, 15 minus 11, not 16, 6, 1/6 to the power 4। अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है in which we have to prove certain conditions and certain questions। question number 2 part 1, 2 to the power 4 divided by 7 to the power 4 is equal to 2/7 up to 4। यहाँ पर देखें अब हमारे पास क्या है 2 to the power 2/7 to the power 4।
इसका मतलब है ये हमारे पास ऐसा रैशनल नंबर है जिसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। देखें 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स का रूल क्या था कि नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो नोमिनेटर्स 2 कितने हैं, 4 टाइम्स हैं। इनका प्रोडक्ट लिया 2 टू द पावर 4 आएगा और डिनोमिनेटर्स भी हमारे पास 4 हैं, 7 टू द पावर 4। ये हमारे पास आएगा 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 4। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। हमने ये क्वेश्चन का यूज किया इस क्वेश्चन में, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय p टू द पावर m विल बी इक्वल टू p टू द पावर m। इसका हमारे पास पार्ट 4 है, a to the power 6 divided by b to the power 6 is equal to a by b whole power 6। इसमें भी हम पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, a by b whole power 6 है, इट्स मीन 6 टाइम्स a by b। तो ये a by b मल्टीप्लाई बाय a b 6 टाइम्स। अब अगेन हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे इन विच वी denominators will multiply with nominators and denominators will multiply with denominators। तो ये 6 टाइम्स a है, तो ये हमारे पास a to the power 6 डिवाइडेड बाय 6 b's हैं, b to the power 6। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, hence prove that left hand side is right hand side। थैंक यू।